کائنات سیریز کے ایک اور اسپیشل ایپیسوڈ میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں۔ یہ ایپیسوڈ پچھلے ایک ایپیسوڈ جنات کے ایپیسوڈ سے بالکل ریلیٹ کرتا ہے۔ یہ بھی انسین ورلڈ کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم ویڈیو ہے جس کے متعلق جاننا بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ یس، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ میجک، جادو کی بات کر رہا ہوں۔ اور آج کی ڈیٹ میں جادو کو جاننا بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ جادو سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے، بلکہ اس لیے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ وداؤٹ ویسٹنگ اینی مور ٹائم، لیٹ اس موو اسٹریٹ انٹو دی میٹر۔ جادو ہوتا کیا ہے؟ جادو کے بارے میں ویسے تو بہت کچھ کہا جا چکا ہے، لیکن ایک ایسی بات جو مجھے بہت پرسنلی اچھی لگی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جادو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا سبب مخفی ہوتا ہے، یعنی اس کی ریزن سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے، بٹ یہ کیوں ہو رہی ہے اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ دیٹس کالڈ میجک۔ اب اس کے بارے میں سائنٹیفک ایکسپلینیشن دینا تو محال ہے، بیکاز سائنس تو اس بارے میں بلیو ہی نہیں کرتی، وہ اس چیز کو سپرسٹیشس مانتی ہے، اور جو چیز بھی مخفی ہوتی ہے، غیب کے اندر ہوتی ہے، سائنس اس چیز کے اوپر بلیو نہیں رکھتی۔ یہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں۔ سائنس اسی چیز کو کنسیڈر کر کے چلتی ہے جو چیز ان کے آبزرویشن کے اندر آ جاتی ہے۔ تو جادو کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اگر دیکھا جائے، جب اس کو میں نے اسٹڈی کیا تو اس کے ٹریسز مجھے ملے اینشنٹ بیبلونیا کے اندر، جو کہ عراق کے اندر، جسے میسوپوٹامیا کہا جاتا تھا کسی زمانے میں، آج کل وہ عراق کہلاتا ہے۔ اور اسی کے اندر ایک شہر، بلکہ مرکزی شہر اس کا ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا بابل۔ اس کے بارے میں ہمیں قرآن کے اندر بھی یہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ رہے تھے، اور اس زمانے میں وہاں کے جو لوگ تھے، اس کے جو باشندے تھے، وہ 7 ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ 7 ستاروں کی، they were worshipping 7 stars۔ اور وہ ایسٹرولوجی اور میجک کے اوپر بلیف رکھتے تھے، اور انفیکٹ ان کی کتابوں کے اندر بھی جادو اور میجک کے حوالے سے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ پھر اگر ایک اور سیولائزیشن کی طرف دیکھیں تو اینشنٹ ایجپٹ کے اندر بھی اس کے ٹریسز ملتے ہیں، اور بہت زیادہ وہاں پہ جادو کا چرچا ہوا کرتا تھا۔ یہ لوگ ارتھمیٹک ایکویشنز، سمبلز اور ورڈز کو جادو میں یوز کرتے تھے۔ اب ان کا بینیفٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہ ویڈیو کے اندر جا کے آپ کو پتا لگ جائے گا، بیکاز دس از ویری نالجبل ویڈیو۔ آپ کی نالج میں انشاءاللہ بہت اضافہ ہونے والا ہے آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد۔ اس کے بعد اینشنٹ پرشیا کو میں نے اسٹڈی کیا تو وہاں پر بھی جادو کے ٹریسز ملتے ہیں۔ اگر ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو وہ لوگ توحید پر قائم تھے ابتدائی زندگی کے بارے میں، لیکن اس کے بعد جادو کا وہاں پر چرچا ہونے لگا۔ انفیکٹ ہسٹوریکل ایویڈنس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ان کا ایک لیڈر تھا رستم، جو سٹار گیزنگ اور ایسٹرولوجی کے اوپر یقین رکھتا تھا، اور ان چیزوں کو اس نے اڈاپٹ کیا تھا۔ سٹار گیزنگ، تاروں کی طرف، اور علم نجوم جس کو کہا جاتا ہے، اور ایسٹرولوجی، اس کے اوپر وہ بلیف رکھتا تھا۔ اور اینشینٹ پرشیا کی جہاں تک بات ہے، بینر آف خسرو اس حوالے سے بہت مشہور ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جگہ تھی، ایک اس کے اندر کئی سارے تعویذ بنے ہوتے تھے، اور بہت بڑی ایک طرح کی دیوار آپ سمجھے، بینر آف خسرو اس کو کہا جاتا تھا، اور یہ گولڈ سے بنا تھا۔ اس کو زرکش کاویان بھی کہا جاتا ہے۔ بٹ جب مسلمان وہاں پہ پہنچے تھے اور انہوں نے انویٹ کیا تھا، اور بیٹل آف قادسیہ جب ٹک پلیس ہوئی تھی، تو وہاں پر اس کو مسلمانوں نے ریپ کر دیا تھا۔ اب یہ سفر چلتے چلتے پہنچتا ہے عرب میں، جب اسلام کی شروعات ہوتی ہے تو وہاں پر بھی جادو کے ٹریسز ملتے ہیں۔ بیفور اسلام کی دعوت سے پہلے وہ لیٹرز یوز کرتے تھے، نمبرز یوز کرتے تھے، اور کچھ تلسمانی طریقے کے ورڈز یوز کرتے تھے۔
साथ में वो कुछ एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल्स को भी यूज करते थे और वहां पर भी जादू का चर्चा था और इसके ऊपर बिलीफ रखा जाता था। क्योंकि मक्के के अंदर तो वैसे यहूदी आबाद नहीं थे, लेकिन दूर दूर इलाकों में यहूदी कुछ बस्तियां आबाद थी। और यहूदियों के हवाले से अगर बात की जाए, ज्यूज के हवाले से अगर बात की जाए, तो उनका मैजिक के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अब मैं आपको एक सफर पर ले जाना चाहता हूं। लेट अस ट्रैवल विद मी, और हम जा रहे हैं हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में। पहले तो ये स्टोरी कहां से शुरू होती है? देखिए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऐसे पैगंबर गुजरे हैं, एक ऐसे नबी, एक ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिनको नबूवत भी मिली थी और जिनको बादशाहत भी मिली थी। और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से 3 दुआएं मांगी थी, और एक दुआ का यहां पर मैं खास तौर से जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने ये दुआ भी मांगी थी कि ए अल्लाह, मेरे बाद जो मुझे आपने हुकूमत अता की है, मेरे बाद ऐसी बादशाही किसी के नसीब में ना आए। और उलमा फरमाते हैं कि ये दुआ उनकी कबूल हो चुकी थी, और इस तरह की सुपर्ब जो किंगडम है वो किसी के नसीब में बाद में नहीं आई और ना ही आने वाली है। वैसे तो उनका जो एरिया पड़ता था, उन स्क्वायर फीट के लिहाज से उनका जो जमीनी रकबा था वो इतना बड़ा नहीं था। उनकी किंगडम एरिया के लिहाज से उतनी बड़ी नहीं थी। इनफैक्ट इट वाज बिटवीन रिवर नाइल एंड इफ्रेटस, दरियाए नील और दरियाए फुरात के बीच की जो जमीन थी, ये इलाका फलस्तीन यरूशलेम का था, वहां पर उनकी हुकूमत थी। ये कोई उतना बड़ा इलाका नहीं था जिसको देख के ये कहा जाए कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी जमीनी रुकबे के एतबार से। इससे बड़ी बड़ी सल्तनतें गुजरी हैं। इनफैक्ट मुसलमानों के अंदर भी सल्तनत उस्मानिया, उसका रुकबा बहुत ज्यादा था। और बिफोर इस्लाम पर्शियन एम्पायर, वो भी बहुत बड़ी थी जमीनी रुकबे के लिहाज से। बट कौन सी चीज सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किंगडम को खास बना देती है? उनकी जो हुकूमत थी, उनकी जो सल्तनत थी, उनकी जो बादशाही थी, वो मल्टी डायमेंशनल एक किंगडम थी, जो कि बाद में किसी के हिस्से में नहीं आई। मल्टी डायमेंशनल इसलिए मैंने कहा कि उनको जिन्नात के ऊपर भी काबू दिया गया था, जो कि एक अलग डायमेंशन की मखलूक है। और काबू ही नहीं, वो उनकी बोलियां समझते थे, उनसे बात करते थे, उनसे काम लेते थे, वो उनके अंडर काम करते थे। और इनफैक्ट ये भी आया हुआ है कि वो इतने सरकश जिन्नात थे, इतनी बगावत पसंद वो थे, वो जंजीरों में जकड़े होते थे, लेकिन फिर भी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे काम लेते थे। और काम क्या करते थे, ये मैंने जिक्र भी किया हुआ है, थोड़ा बहुत फिर से जिक्र करता चलूं, ताकि अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसकी नॉलेज में इजाफा हो जाए। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंट्रोल में जब जिन्नात को दिया गया था, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इनको मुसख्खर कर दिया गया था, और वो उनसे तरह तरह के काम लेते थे। जैसे कि बड़े बड़े महल्लात वो तामीर कराते थे, जैसे कि वो बड़े बड़े लगन, बड़े बड़े हाउस जैसे प्याले बनाते थे, और इतने भारी भरकम पत्थरों को उठाकर इमारत तामीर करते थे, जिनको उठाना आज की टेक्नोलॉजी में भी पॉसिबल नहीं है। और उनके लिए समंदर में गोते लगाते थे, और वहां से मोती, हीरे, जवाहरात निकाल के लाते थे, जो कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर यूज होते थे। और कंस्ट्रक्शन की उनको महारत हासिल थी। इतने अजीबो गरीब उन्होंने ढांचे बनाए हैं, इतने अजीबो गरीब कंस्ट्रक्शन उन्होंने की है कि आजकल की दुनिया जब उनको देखती है तो साइंस टेक्नोलॉजी की आंखें धरी की धरी रह जाती हैं कि ये टेक्नोलॉजी आखिर उनके पास उस वक्त में कैसे आई थी। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जहां तक बात है, उनको परिंदों के ऊपर भी और हैवानात के ऊपर भी कंट्रोल दिया गया था। इनफैक्ट वो परिंदों की बोलियां समझ रहे थे, बर्ड्स की जो बोलियां होती है उनको भी समझ रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, और जमीन में रेंगने वाले चोंटियों तक की आवाज को वो समझ सकते थे। उनकी जो आवाज है बहुत धीमी आवाज होती है, लेकिन वो उसको भी समझ सकते थे। और हैवानात, शेर, चीते, जितनी भी हैवानात है वो उनकी मजलिस में रहते थे और उनसे वो बातें करते थे। एंड इट वॉज रियली मल्टी डायमेंशनल किंगडम, जो कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हिस्से में आई थी। और उसी जमाने के अंदर शयातीन ने लोगों के अंदर जादू फैलाना शुरू कर दिया था। अब
अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को अगर देखा जाए तो सूरतुल बकरा की 102 आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वत्तबअू मा तत्लु शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर। यानी इत्तिबा उन लोगों ने की थी जो कि वत्तबअू मा तत्लु शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान, यानी सुलेमान के दौरे हुकूमत के अंदर, दौरे नबूवत के अंदर शयातीन जिस चीज को पढ़ते थे तो इन लोगों ने उनकी इत्तिबा की थी। बनी इसराइल की बात हो रही है। फिर वमा कफर सुलेमान, हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुफर नहीं किया, वलाकिन्न शयातीन कफरू, बल्कि शयातीन जो थे उन्होंने कुफर किया था। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इससे बरी थे। युअल्लिमून अन्नास सिहर, वो लोगों को जादू सिखाते थे। तो शयातीन उस जमाने में लोगों को जादू सिखाते थे। अब बैकग्राउंड में चलते हैं, इस बात का पस मंजर क्या है, क्यों शयातीन उस वक्त जादू सिखाते थे लोगों को, और ये क्यों कहा गया है कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुफर नहीं किया। देखिए, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो भी नबी थे और उनको भी बहुत बड़ी हुकूमत अता कर दी गई थी और उनकी भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें उनको भी दी गई थी जिनका मैं यहां पर जिक्र नहीं करना चाहूंगा। अब बात शुरू होती है, ये बनी इसराइल, इनके अंदर ये जादू इन्होंने क्यों सीखा, इनके अंदर आखिरकार ये इस चीज के पीछे क्यों लग गए। ये तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बनी इसराइल थी और बहुत बड़ी उम्मत थी। एक्चुअली ये कहानी स्टार्ट होती है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, जो कि इराक के अंदर रहा करते थे, जहां पर एंशिएंट बेबीलोनिया की जो मैंने बात की थी। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटे हुए हैं, इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी दो बीवियों से, सारा अलैहिस्सलाम और हाजिर अलैहिस्सलाम से। फिर उनकी दो लेगेसीज चली हैं, जो इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आगे ज़ुरियत चली है उनको बनी इसराइल कहा जाता है, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जो ज़ुरियत आगे चली है उनको बनी इस्माइल कहा जाता है। अब खास तौर से यहां पर बनी इसराइल का जिक्र करते हैं क्योंकि इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यूं तो कई सारे बेटे थे, लेकिन उनके अंदर एक बेटा ऐसा था जिसका नाम था याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो भी पैगंबर थे। अब उनका लक़ब था इसराइल, उन्हीं की निस्बत से बनी इसराइल को बनी इसराइल कहा जाता है। अब उनके 12 बेटे थे और 12 बेटों में उनके जो सबसे चहेते बेटे थे वो थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनका किस्सा तफसीलन कुरान के अंदर आया हुआ है और इनफैक्ट पूरी की पूरी सूरत उनके नाम पे है, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और उनके यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई थे बुनियामीन, और ये याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो चहेती बीवी थी राहील, उनके वतन से थे। उनकी और भी बीवियां थी, 4 बीवियां थी और उनसे भी बहुत सारी औलाद थी और 12 बेटे थे। फिर जब ये 12 बेटे बड़े होते गए, फिर इन 12 बेटों के नाम पे 12 कबीले बन गए, 12 शाखें बन गई, और उन्हीं शाखों को, उन्हीं तमाम कबाइल को मिला जुला के बनी इसराइल कहा जाता है। फिर उनके अंदर कई सारे पैगंबर आते चले गए और एक जमाना ऐसा आया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके अंदर रहे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र तफसीलन कुरान के अंदर सबसे ज्यादा जिस पैगंबर का नाम के साथ बाय नेम जिक्र है वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हैं। और उनके जमाने में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम वो भी पैगंबर थे। एक टाइम में 2 पैगंबर, 2 भाई पैगंबर थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर तौरात मिली और वो फिर इस मैदान के अंदर चल रहे थे और उनका जो टारगेट था यरूशलेम को फतह करना था, क्योंकि वो वहां से निकाले गए थे और वो मिस्र के अंदर गुलाम बना लिए गए थे, फिरौनियों के वो गुलाम थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वहां से निकाला। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करके बता रहा हूं। वहां से मोहलत दी, समंदर फट गया और वो पार हो गए और फिरौन का लश्कर डूब गया। फिर जब उनको नजात मिली फिरौन से और मिस्र से, वो भाग के आए। फिर उनको यरूशलेम के अंदर जाना था जहां के वो एक्चुअल बाशिंदे थे, फलस्तीन के अंदर। लेकिन वो इस मैदान के अंदर जब आए तो उन्होंने ऐसी ऐसी नाफरमानियां की है, कुरान में उनका तफसीलन जिक्र मौजूद है कि उनके ऊपर वो सरजमीन फिर 40 साल तक हराम कर दी गई। अब वो भटकते रहे थे इस मैदान के अंदर, सहराए सीना के अंदर भटकते रहे थे। और उसी जमाने में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हो गया। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो जानिशीन थे, खलीफा थे यूशा इब्न नून,
उनकी क़यादत में फिर बाद में यरूशलेम फतह हुआ है और फिर वो यरूशलेम के अंदर गए हैं, बैतुल मक़दिस के अंदर गए हैं, फिलिस्तीन के अंदर गए हैं, जो कि उनकी ओरिजिनल अपनी सरजमीन थी। इसका एक बैकग्राउंड है, ये कैसे बनी वो मैं यहां पर जिक्र नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे टॉपिक से रिलेट नहीं है। किसी और वीडियो में इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला तफसीलन बात करेंगे। तो वहां पर जो आबाद हो गए तो फिर वक्त चलता गया, इनके अंदर पैगंबर आते गए। एक जमाना ऐसा आया जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक पैगंबर को मबूस फरमाया और उनका नाम था शमूएल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उन्होंने फिर जालूत के लश्कर से लड़ने के लिए तालूत को फौजी कमांडर मुकर्रर किया था और तालूत के लश्कर में कई सारे सिपाही थे, एक छोटा सा बच्चा भी था जिसका नाम था दाऊद। और मैदान जंग में जब लोग तालूत से डर गए, उनके लिए एक टेस्ट था, जो इस नहर से पानी पिएगा वो फिर उसकी हिम्मत टूट जाएगी, वो नहीं लड़ सकता। जो पानी नहीं पिएगा, हाँ थोड़ा सा चुल्लू भर के पी सकता है, वो लड़ेगा, वो लड़ सकता है, उनके अंदर हिम्मत बाकी रहेगी। तो कुछ को छोड़ के सबने पानी पी लिया, उनकी हिम्मतें जवाब दे गई और उन्होंने कहा कि जालूत के मुकाबले में लड़ने की आज तो हम में हिम्मत नहीं है। फिर उन्होंने वो मशहूर दुआ मांगी थी क्योंकि वो कलील तादाद में थे, रब्बना अफ्रिक अलैना सब्रन वस्तबित अक़दामना, यानी अल्लाह तबारक व तआला से उस छोटी सी जमात ने फिर दुआ की थी कि अल्लाह हमारे ऊपर सब्र उंडेल दे। यानी सब्र, जिस तरह से कोई बाल्टी से टब से पानी उंडेल देता है पूरा का पूरा, इसी तरह से सब्र उंडेल दे हमारे ऊपर, क्योंकि लड़ना जिस फौज से है वो बड़ी भारी भरकम फौज है और हम तादाद में कलील है। फिर ये लड़ाई हो गई तालूत और जालूत की और यहां पर फिर दाऊद, जो इनके अंदर एक सिपाही थे, छोटे सिपाही थे, उनका एक्चुअल में एक निशाना बड़ा तेज था। उन्होंने निशाना मारा है जालूत को, जो कि उनका फौजी कमांडर था, और वो जालूत के एक्चुअल उसी जगह पे लगा जहां पर उसका जो जिस्म था वो उसके अंदर तीर यानी कि उसके अंदर तीर जा सकता था, बाकी तो उसका जिस्म पूरा कवर था। तो वो गिर गया, फौजी कमांडर गिर गया। फौजी कमांडर का गिरना ये था कि अब ये लड़ाई उन्होंने अपोजिट साइड ने जीत ली है और उनकी हार मुकर्रर थी। तो दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर ओहदा मिला, उनको फिर कमांडर से फिर हुकूमत मिली और बाद में उनको नबूवत भी से सरफराजा गया। उन्हीं के बेटे थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुलेमान इब्न दाऊद, जिनको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक किंगडम मिली थी जिसका मैंने मल्टी डायमेंशनल किंगडम आपके सामने जिक्र किया है। अब तालूत ने उन जादूगरों को, जो कि उनके अंदर मौजूद था, सामरी का किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही हुआ था और इजिप्ट के अंदर एंशंट जहां पर वो इजिप्ट के अंदर रहे थे वहां पर भी जादू का चर्चा था। कुछ जादू की लत उनको वहां पे लग गई थी और फिर तालूत ने सब जादूगरों को वहां से निकाल लिया, अपने मुल्क से निकाल लिया। लेकिन जब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर आ गया तो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब जिन्नों के ऊपर भी कंट्रोल दिया गया तो फिर जब शयातीन ने ये फिर बावर कराया सुलेमान के अहद सल्तनत में कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जादूगर थे और वो जादू के बलबूते पर ही ये हुकूमत करते थे। क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब शैतान की इन कारस्तानियों का जिक्र हुआ कि वो लोगों को जादू सिखाते थे तो उन्होंने वो शैतानों की पूरी सारी की सारी किताबें जो उन्होंने लिख ली थी, जो शैतान उचक कर ले जाते थे, जो फरिश्तों की सरगोशियां सुनते सुनते काहिनों के कानों में वो बात डाली जाती थी जो कि हदीस में आया था, वो उसको लिख लेते थे। उन्होंने किताबें लिखी थी। अब उन किताबों को उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब्त कर लिया और अपनी कुर्सी के नीचे छुपा दिया, अपनी तख्त के नीचे। और वो एक तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तख्त था जिसकी डिटेल किसी और वीडियो के अंदर बयान की जाएगी इंशाअल्लाह। उस तख्त के अंदर नीचे छुपा दी। अब जब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से चले गए तो उनके चले जाने के बाद शैतानों ने ये लोगों के अंदर फैलाना शुरू कर दिया कि उनकी कुर्सी के नीचे देखो वो किताबें दफन पड़ी हैं। इन किताबों के बलबूते पर ही वो हुकूमत करते थे और आज तक फिर यहूदियों के अंदर ये राइज है कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाउज़ु बिल्लाह जादूगर थे। अब आते हैं इस स्टोरी को एनालाइज करने के बाद, ये स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई है। अब फिर आयत की तरफ आते हैं। वत्तबअू मा तत्लु शयातीनु अला मुल्क सुलेमान, इत्तिबा की उन लोगों ने, बनी इसराइल ने उस चीज की जो कि सुलेमान के अहदे सल्तनत में, अहदे हुकूमत में शयातीन पढ़ा करते थे। वमा कफर सुलेमान, जो कि वो कहा करते थे कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जादूगर थे, और जादू को यहां पर कुफर से ताबीर किया गया है। वलाकिन शयातीन कफरू, बल्कि शैतानों ने कुफर किया था। युअल्लिमूना नास सिहर, वो तो सिहर जादू सिखाते थे। वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत,
और हारूत और मारूत के ऊपर बाबुल शहर के अंदर जो कुछ नाजिल किया गया था, यानी इसके अंदर हारूत और मारूत का किस्सा, इसके अंदर अजीबोगरीब वाकया तफासिर में आए हुए हैं जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उनकी सेहत में कलाम है। हारूत और मारूत, एक मारूफ राय है कि वो दो फरिश्ते थे, बाबुल शहर के अंदर उतरे थे और एक आजमाइश थी। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत, ये बहुत लंबी आयत है, हो सकता है मैं इसको पूरा कवर ना कर पाऊं। इस आयत के अंदर ये भी आगे फरमाया है कि वो लोगों को नहीं सिखाते थे बल्कि उनसे पहले कह देते थे कि ये तो आजमाइश है, हम फितने के लिए आए हुए हैं, आजमाइश के लिए आए हुए हैं, लिहाजा ये इल्म हमसे मत सीखो। और वो लोग तो उनसे इल्म सीखते थे और वो इल्म सीखते थे जिसको यूज करके वो फिर मर्द और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते थे। अब ये जादू था या कुछ और इल्म था, इसके अंदर कई सारे अकवाल आए हैं मुफस्सिरीन के अंदर। और एक बड़ी राय यह है कि वो जादू का इल्म सीखते थे और इस जादू के जरिए ही वो मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई डालते थे, ये जादू की एक किस्म है। और एक राय यह भी है कि उनको कुछ इल्म दिया गया था जो कि अल्फाज के अंदर अपने कुछ खवास मानी होते हैं और अल्फाज के अंदर एक तासीर होती है। जिस तरह से म्यूजिक होता है, वो तो जब बजता है तो एक तर्ज उसकी बनती है जिससे तबीयत खुश हो जाती है और एक तर्ज उसकी जब बजती है तो इंसान दुख महसूस कर रहा होता है। आवाज तो एक ही है, जो साउंड वेव्स के अंदर इस तरह की कैफियत हो सकती है, तो हरूफ के अंदर, अल्फाज के अंदर भी अपनी तासीर होती है। बहरहाल ये एक हकीकत अपनी जगह मुसल्लम है। अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानते हैं कि उनको क्या इल्म देके भेजा गया था। अब ये बाबुल इराक में पड़ता है। अब इसका अचानक से जिक्र आयत में आना, इसकी एक साइंस बनती है और वो साइंस ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से चले जाने के बाद उनकी जो सल्तनत थी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई फौरन से। एक हिस्सा तो इसराइल कहलाया और दूसरा हिस्सा यहूदा। अब उनके चले जाने के 300 साल बाद नेबुकदनेस्सर जब आता है और वो यरूशलेम पर अटैक करता है और दोनों शहरों को मिस्मार कर देता है, यहूदा को भी और इसराइल को भी, और 6 लाख यहूदियों का कत्लेआम करता है और हैकले सुलेमानी को तोड़ देता है। 6 लाख यहूदियों को अपने साथ गुलाम बना के इराक ले जाता है। ये इसका पूरा पस मंजर है। और यरूशलेम उस वक्त बिल्कुल इंसानों से खाली हो जाता है। 6 लाख लाशें नीचे पड़ी होती है और 6 लाख जो जिंदा बचे थे उनको अपने साथ ले गए इराक। अब इराक तो पहले से ही जादू का गढ़ रहा था। वो जब वहां चले जाते हैं यहूदी, तो वहां से भी उन्होंने जादू सीखा। पहले तो शैतानों से जादू सीखा सुलेमान के अहले सल्तनत में, फिर इराक जाके जब गुलाम बने वहां से भी जादू सीखा। उससे पहले उन्होंने मिस्र से जादू सीखा था। तो इन्होंने जादू के अंदर ये बहुत गहरे चले गए। तो जादू की एक पुरानी हिस्ट्री है जिसको मैं समझता हूं मैंने आपके सामने अच्छे से बयान कर दिया है। अगर कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट में बता देना। अब थोड़ा जादू की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैजिक। इसकी वैसे तो कई सारी अकसाम है जादू की जिनको एक वीडियो के अंदर कवर करना नामुमकिन है। इट इज इम्पॉसिबल टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ मैजिक इन वन वीडियो। बट ऑन दी होल अगर बात की जाए तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो वो है जिसे रियल मैजिक कहा जाता है और दूसरा वो है जो इल्यूजन होता है, नजरों का धोखा होता है। रियल मैजिक तो वो होता है जिसके अंदर जादू होता है और जिन्नात से काम लिया जाता है और उसका असर जिस्म पर होता है। इंसान बीमार पड़ सकता है, इनफैक्ट इंसान मर भी सकता है अल्लाह के इज़्न से। ये सारा कुछ होता है। और दूसरा वो है जो इल्यूजन होता है, सिर्फ नजरों का धोखा होता है। उसमें जादू वादू कुछ नहीं होता, कुछ ट्रिक्स होती हैं। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जादूगरों ने वो रस्सियां डाली थी और वो लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो सांप दौड़ रहे हैं। वो सांप नहीं बन गए थे, लोगों को लग रहा था कि सांप हैं, थी वो रस्सियां ही। ये इल्यूजन होता है और एक तरह की ट्रिक होती है। अब जादू एक तो वो किया जाता है जिसे सर्फ कहा जाता है और दूसरा वो है जिसे अतफ कहा जाता है। सर्फ वो जादू होता है जिसके अंदर सेपरेशन होती है, यानी दो मियाँ बीवी हो, भाई भाई हो, इनको दूर किया जाता है। और अतफ वो होता है जिसके अंदर क्लोज किया जाता है लोगों को। और इसके अंदर दो को मिलाने के लिए ये जादू किया जाता है। इसकी कई सारी अकसाम हैं जिनको यहां पर डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैजिक। इसका पर्पस क्या है?
पर्पस के हवाले से अगर बात की जाए तो मैजिशियन के हवाले से इसका अलग पर्पस है और शैतान डेविल के हवाले से इसका अलग पर्पस है। मैजिशियन के हवाले से अगर देखा जाए तो वो तो या तो शोहरत चाहता है, लोगों के अंदर अपनी मशहूरी चाहता है, अपना फेम चाहता है, और या तो ये चाहता है कि वो लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व करे और उनसे कुछ पैसे हड़प सके। मैजिशियन के हवाले से अगर बात की जाए, वीडियो के आखिर में मैं कुछ सिम्टम्स बताना चाहूंगा जिसके ऊपर जादू हो चुका हो, उसके अंदर कौन सी सिम्टम्स का पाया जाना मुमकिन है। सिम्टम्स बताने से पहले एक बात यहां पर अर्ज करना चाहूं कि जादू होता है, इसकी हकीकत है। अगर ये नहीं होता या इसकी कोई हकीकत नहीं होती तो कायनात के सबसे आला इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ऊपर फिर जादू नहीं होता। मैं उस तवील हदीस को यहां पर डिस्कस नहीं करना चाहूंगा जिसके अंदर तफसीलन जिक्र है कि किस तरीके से कबीला ज़रवान के अंदर वो लबैद इब्न आसम या उनकी बेटियों या उनकी बीवियों ने या उनकी बहनों ने किसने किया था, उनके कंगे या किसी चीज के ऊपर फिर कुएं के अंदर वो पत्थर के नीचे वो जादू रख दिया था। उसको मैं यहां पर जिक्र तफसीलन नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा अगर उनके ऊपर जादू हो सकता है तो बाकी इंसानों के ऊपर होना तो फिर कोई अजीब बात नहीं है। सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले नंबर पर आता है सडन लव और हेट। अचानक से किसी से मोहब्बत हो जाना बहुत ज्यादा, और अचानक से किसी की नफरत हो जाना, और इसके साथ साथ इनक्योरेबल सिकनेस हैविंग नो कॉज, यानी ऐसी बीमारी किसी को लग जाए जो ठीक ही ना हो रही हो और उसकी कोई वजह भी सामने नहीं आ रही हो। टेस्ट कराए हैं, डॉक्टर के पास गए हैं, बीमारी तो है लेकिन वहां पर तो कुछ टेस्ट के अंदर तो कुछ नहीं आ रहा है, टेस्ट तो बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं, मेडिकल साइंस तो कह रही है इसको कोई बीमारी ही नहीं है। तो ऐसी बीमारी जो ठीक भी नहीं हो रही है, उसका कोई काज भी नहीं है, तो इस तरह की बीमारी तो जादू से ही हो सकती है। एंड इसके अंदर एक और सिम्टम है ब्रेकअप ऑफ फैमिलीज, स्पेशली वाइफ एंड हस्बैंड। मियां बीवी के दरमियान जुदाई डाली जाती है और फैमिलीज को ब्रेक किया जाता है, खानदानों को तोड़ दिया जाता है, तबाह कर दिया जाता है। और खास तौर से इसके अंदर जो खामद और बीवी होती है, वाइफ और हस्बैंड होते हैं, उनके दरमियान जुदाई डाली जाती है। ये बहुत ज्यादा चलता है मार्केट के अंदर, यही इसी के ऊपर ज्यादा जादू होता है जिसका जिक्र कुरान के अंदर भी आया हुआ है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो मैसिव चेंज इन पर्सनालिटी के अंदर एक तरह का मैसिव चेंज आ जाता है। इंसान हैरान रह जाता है कि ये बंदे के अंदर इस तरह की पर्सनालिटी कैसे डेवलप हो गई, इसके अंदर इतना मैसिव चेंज कैसे आ गया, लेकिन ये सब कुछ जादू बैकग्राउंड में कर रहा होता है। एंड लास्ट में मैं जिक्र करना चाहूंगा सिम्टम्स के हवाले से सडन बिहेवियर चेंज। अचानक से किसी इंसान का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो तो यूं तो वो नॉर्मल इंसान था, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि वो तन्हा तन्हा रहना पसंद करता है, घर में उसका दम घुटता है, वो बाहर जाके रहना पसंद करता है, शाम को अकेले निकलता है, बाहर बैठता है, घर में नहीं बैठता। तो इस तरह के जो बिहेवियरल चेंजेस है सडन अचानक से हो जाते हैं, तो ये इसके ऊपर जादू काम कर रहा होता है। अब जादू और पोजेशन में क्या फर्क होता है ये भी चलते जाते जाते बताता चलूं। जादू वो होता है जिसके अंदर एक जिन होता है और वो बाय फोर्स उसके साथ अटैच हो जाता है, उसका वहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट जो राकी होता है, जो इसका मालिज होता है, उसके लिए भी उस जिन को वहां से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बाय फोर्स अटैच किया जाता है जादूगर के जरिए उसके साथ। क्योंकि जादू जो होता है वो जादूगर और जिन के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जादूगर को कुछ शिरकिया कुफरिया काम करने पड़ते हैं और उनके बदले में शैतान उसके कुछ काम कर देता है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो एक मुआहदा होता है जो दो तरफा चलता है। और पोजेशन वो होती है, पोजेशन के अंदर एक जिन भी हो सकता है, दो जिन भी हो सकते हैं, कई जिन भी हो सकते हैं। वो अपनी मर्जी से किसी के ऊपर चिपक जाते हैं, या उसने कोई गलती करी हो, उससे कोई कोताही हो गई हो तो उसके ऊपर चिपक जाते हैं, वो जल्दी से निकल जाते हैं। उनके अंदर कुरान पढ़ा जाता है उनके ऊपर तो वो निकल जाते हैं। इस डिस्कशन को मैं अल्लाह तबारक व तआला के इस कोट से एंड करना चाहूंगा। इंडीड द प्लॉट ऑफ सैटन इज एवर बीन वीक। सूरत निसा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि शैतान की जो चालबाजी है ये बहुत कमजोर है। और ये जो मैंने इतनी चीजें गिनवाई हैं जादू से क्या क्या हो सकता है, तो अगर किसी को कुछ हो जाता है, कोई इस तरह के सिम्टम्स नजर आने शुरू हो जाएं, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर यकीनन जादू ही है। पहले तो वो मेडिकली अपने आप को चेकअप कराए, पूरा तसल्ली करे। अगर तो उसको कोई बीमारी है तो मेडिकल चेकअप से उसके अंदर बीमारी जाहिर हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती फिर भी बीमारी है, फिर तो किसी अच्छे मुआलिज के पास जाना चाहिए, फिर तो यकीनन उसके ऊपर कोई जादू किया हुआ होगा।
आई होप कि ये डिस्कशन आपने सुनी होगी और आपकी नॉलेज में इजाफा हो चुका होगा। मैं जानता हूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। मैं इसके साथ एक वीडियो के अंदर इंसाफ नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजें रह गई हैं। अगर मुझे फीडबैक मिला कमेंट्स की शक्ल में तो इसके ऊपर मैं शायद एक और पार्ट भी इसका रिलीज कर दूं और उसके अंदर बाकी जितनी चीजें रह गई हूं उनको कवर अप करने की कोशिश करूं। फिलहाल के लिए तो मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। टेक केयर एंड खुदा हाफिज।